Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. I am giving you notes of BSc 5th Sem Inorganic Chemistry chapter Bonding in Metallic Compounds. ठीक है, टुडे मैंने आपको अपनी फर्स्ट पार्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया था. ठीक है, उसके बारे में हमने उसकी शेप्स पढ़ी, लिमिटेशंस पढ़ी. ठीक है, आज हम करेंगे CFT. ठीक है, CFT theory. This theory was developed by H. Beatty and B. Black in 1935. According to CFT, the bonding between metal ion and ligand is purely electrostatics, that is 100% ionic. Main points of CFT are: first, the transition metal ion is surrounded by ligands with lone pair of electrons. All types of ligands, whether they are ion जैसे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव और मॉलिक्यूल्स वाटर, एमीन आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस. इसमें आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ CFT थ्योरी. ठीक है, मैं आपको अपनी कोशिश से पूरे इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अब एग्ज़ाम में उनको अच्छी तरह याद कर सकें और एग्ज़ाम्स में गुड स्कोर कर सकें. ठीक है, आप मेरी वीडियो एंड तक देखा कीजिए ताकि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आप उसे देखो और अपने उसी हिसाब से अब अपनी तैयारी करो. Third point is the attraction between metal ion and ligands is purely electrostatics. Fourth, the valence electron of metal will be repelled by negative field of ligands. Thus, electron prefer to occupy those orbitals which have their lobes away from the direction of ligands. Fifth point is CF splitting will be different in different structure with different coordination number. The magnetic properties can be explained in terms of splitting of d orbitals in different crystal field जैसे कि octa, tetra, square, planar. Color of transition complex can be explained in terms of electronic transition. मैं आपको बताती हूँ, आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं. उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें मैं आपको आगे अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे और क्या लिख के आना है. आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए. Now next is crystal fluid splitting in octahedral complex. In octahedral complex, the metal ion is at center of octahedra, whereas ligands lies at the six corners of octahedra. इसमें क्या होता है octahedral complex में कि आपको एक तो मेटल आयन सेंटर में लगा होगा और लिगेंड्स जो हैं उसके ऑक्टाहेड्रा के सिक्स कॉर्नर्स पे लगे होंगे. उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि क्रिस्टल फ्लूइड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, let us consider first a metal ion without any ligand surrounding it. In this case, the 5d orbitals possess same energy and are called g generate orbitals. इसमें क्या होगा, अगर हम फर्स्ट मेटल आयन को, ठीक है,
उसको हम देखते हैं। उसमें हमने देखा कि उसके पास जो इन दिस केस 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम एनर्जी होगी, उसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। Now let us place metal ion in spherically symmetric electric field of 6 negative charge. The electron present in d orbital of metal will interact with electric field of 6 negative charge. This repulsion between like charges raises the energy of d orbitals equally as shown in figure. इस फिगर में देखिए आप, जैसे कि 5 ऑर्बिटल्स यहाँ हैं तो इनको जब एनर्जी मिली तो ये अपनी अपर लेवल में चले गए। Next is in octahedral complexes TIF6-3, the 6 ligands lies above the 3 axes. The two orbitals dx square minus y square and dz square have their lobes along the axis and are designated as EG orbitals. The three orbitals dxy, dzx, which have their lobes in between the axes, are designated as T2G orbitals. The electron which are present in EG orbitals will be replaced more because ligands lie along the axis. जो भी आपको ये मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ये आपको एग्जाम में जरूर लिख के आने हैं, ताकि आपके एग्जामिनर को एग्जाम पेपर चेक करते हुए आपको लगे कि हाँ बच्चे को टॉपिक समझ में आ रहा है। In other words, energy of dx square minus dy square and dz square orbitals will increase much more than energy of dxy, dyz and dzx orbital. There in octahedral complexes, the 5 d orbitals split up into two sets. One set consisting of two orbitals of energy, उसको हम कहते हैं EG orbitals। जो कि एक सेट होता है 2 ऑर्बिटल्स का, उसको तो हम कहते हैं EG ऑर्बिटल्स, और जो 3 का होता है उसको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। And other set consisting of 3 orbitals of low energy T2G orbital. The crystal field splitting in octahedral complexes can be shown as, ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है। ये फ्री मेटल आयन है, जब इनको मेटल आयन सराउंडेड बाय लिगेंड्स को हुआ तो 5 ऑर्बिटल्स बने, वहां से एक 2 क्रिस्टल फ्लूइड स्प्लिटिंग हुई, एक हुई T2G, एक हुई EG ऑर्बिटल्स की। इनकी तो होती है 4dq एनर्जी लेवल, इनका होता है 6dq, मतलब कि टोटल कितना हो गया 10dq। ठीक है, और इसको हम डेल्टा नोट से इनको ऐड करके 10dq, इसको हम डेल्टा नोट कहते हैं। यानी डेल्टा नोट का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल। The crystal fluid splitting is measured in terms of energy difference between T2G and EG orbitals, del naught. The crystal fluid splitting is generally measured in terms of parameter dq. By convention, del naught is equal to 10 dq. It's clear from the diagram that an electron will prefer to go into more stable T2G orbital rather than higher energy. Example orbital. Each electron going into T2G orbital is stabilized by minus 4dq, and each electron going into EG orbital will be destabilized by minus dq. The gain in energy be preferential filling of, पहले आप ये नोट कर लीजिए, T2G orbital is called CFSE. CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसकी एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन provided by splitting of d orbitals into two levels called CFSE.
नाउ CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. फर्स्ट इज D1 कॉन्फ़िगरेशन. Next is D2 configuration. आपको कोई भी मेरे नोट्स में प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी. ठीक है. ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ऑक्टाहेड्रल की D3 कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, तो आपको ऐसे सिर्फ इतना पार्ट करके आना है. ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछी जाती है. D4 configuration. Pairing energy definition: the energy required to causing pairing of electrons called pairing energy. पेयरिंग एनर्जी, अगर डेल नॉट ज़्यादा आता है पेयरिंग तो उसको हम कहेंगे लो स्पिन, अगर लेस देन आता है तो उसको हम कहेंगे हाई स्पिन. D5 कॉन्फ़िगरेशन. D6 configuration. D7 कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे ये हाई स्पिन लिखा हुआ है. D8 कॉन्फ़िगरेशन. D10 कॉन्फ़िगरेशन तक मैं बता रही हूँ आपको. इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन के आपको एग्जांपल्स देने हैं.
D9 configuration. लास्ट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द सबस्क्रिप्ट। आप इसे अभी नोट करना चाहे अभी नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल फ्लिट स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल फ्लिट स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है और हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।